opposition, especially the members of TMC and Congress, will stoop so low as to, while being political opponents, they will do things to damage the reputation of the country. And today in the House, one of the members snatched the papers from the minister who was making the statement. This sort of behavior is something which democracy has never seen, and we have seen earlier how they conducted themselves when Prime Minister was addressing and introducing the new ministers in the Parliament. While this new law has been brought into politics is something we all must understand. And the fact is that this story which is floating around about Pegasus is a fake story. The fact is also that Amnesty has denied that list which is circulating is not an actual list, and it's only indicative of something. So basically, there are two services which are available in public domain, that is HLR services and VLR services. That is means home location registry or visitors location registry. Now pick up a yellow page. You will all remember that there used to be a directory system. BSNL used to have its own directory. There are so many other directories, yellow pages also. And from yellow pages to yellow journalism is what we have seen in this entire story. Some list is crafted, created, circulated, and the story goes around a fake list. 10 countries have been named, that 10 countries this spyware is used. Now, I do not know which spyware is used, but if those spyware is used by 10 countries, have the other countries' opposition behaved and reacted the way our opposition has? This is not a story, this is a non-starter across the globe, because based on concocted, fabricated, evidence-less story, nobody does story, because that story itself calls for forgery and defamation. Leaked data is an offense, and that leads to further complications for people who base their stories on leaked data. It only happens in India. I am really shocked and surprised the way mythical characters like Darth Vader or Voldemort are created in Harry Potter. Similar conduct is being indulged in by the opposition in the Parliament. Whenever something right and good is supposed to happen to the country through welfare schemes, new laws, this kind of conduct is indulged in. And yes, you must understand the chronology. The chronology is, there is something like Data Protection Act, a joint parliamentary committee, which I was chairing and was assigned, a task assigned to me by the Honorable Speaker. All the members of opposition worked on it in a most transparent manner. The report was ready, but the whole country was moving from one crisis to the other, especially in view of Corona, then elections, then parliamentary session, then reshuffle. All those things led to that report is not brought before the Parliament for adoption. But that report is submitted to the Speaker. And data protection is going to become the law of the land. And this is directly connected with that. This is to undermine the Indian institutions, that these kind of stories are floated. This is to desensitize public on the credibility of the structures when rights of Indians and democratic structure is involved, and to malign the image of country that these acts are depended upon by the opposition. And that's why I say that these people are people who will do anything to fake the story, fake the narrative. NSO, the company which builds the spyware,
has denied that this is not a list of their customers and has no corroborative evidence of any connection between the list which is in circulation or their customers. Amnesty International has denied about this list, and yet opposition has continued to disrupt the House on a fake list. And if you recall, on WhatsApp also, they had brought this story earlier about a spyware. The matter went to Supreme Court and the matter was decided against that fake narrative. Repeatedly, these kinds of narratives are built only to damage the reputation of India, so that the new ecosystem which government is trying to create to secure the data of Indians, to secure and build an ecosystem which is protective of Indian data and Indian the rights of Indian people. To damage all that, these kind of things are created. In addition to the fact that Parliament is in session, several new laws are likely to be brought in. Any decent debate on corona crisis management will show the previous governments in very poor light and existing opposition state governments in very poor light. To avert all the arguments in favor of the government, this particular story, the fake story, is being depended upon. We also know that this was leaked by Forbidden Stories. I don't have a problem with forbidden stories, but I do have a problem when Forbidden Stories does not mention the word fictional stories. The fiction is apparent by the 3 acts which they have engaged in, and there are all kinds of things which happen when it comes to spying and data protection. So far as India is concerned, we are dealing with Maoists, we are dealing with terrorists, we are dealing with people who are financial offenders, we are dealing with all kinds of criminals. And there is an established mechanism in which these acts or these protocols will be engaged in. There is section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, and there is section 69 of the IT Act 2000. When there are issues concerning national security, public safety and public order, this protocol is followed, and this protocol is based on checks and balances. And based on these checks and balances, certain authorizations are granted for any kind of tapping or monitoring. So interception, monitoring and decryption is based on Information Technology Act and its rules. It's based on earlier format of Telegraph Act. 3 things. One is the published story is based on a list of the numbers which are available in any directory. It's a home location register. The second part is the amnesty has denied this list. Third aspect is the company whose product of Pegasus is supposed to be used by some people has alleged that these claims are uncorroborated and do not tally with their customer base. And the time-tested processes in our country are absolutely stable and clear as to whenever this act of encryption, interception or decryption or monitoring is conducted, it is conducted under the rules and regulations of the land. So opposition can go on creating mythical conduct and go on working like a mythical figure themselves, and I have nothing more to say except may God bless them with some wisdom. मित्रों, आज हम पेगासस से रिलेटेड जो कहानी येलो पेजेस के माध्यम से देखी जा रही है वो आप सबके सामने है। जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहाँ से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए
और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर है हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, NSO जो कंपनी है इजरायली जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहाँ होती हैं उसके बिल्कुल ऑथोराइज प्रोटोकॉल है, उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत गलत तरीके से भारत में स्थित जो भारतीयों का डाटा है उसका गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है, और इसी कारण से भारत सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया था जिसको डाटा प्रोटेक्शन की जेपीसी कहा जाता है, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, रिपोर्ट पे हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में आ नहीं पाई क्योंकि लगातार कोरोना महामारी का जंजाल सबके जीवन में रहा, और साथ ही देश में इलेक्शन होते रहे, फिर कैबिनेट रिशफल हुआ, और उन सब के चलते उसकी जो एडॉप्शन है वो डिले हुई। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार है और अभी स्पीकर साहब ने किसी को अपॉइंट करना है उसको एडॉप्ट कराने के लिए भी। तो भारत सरकार बहुत सीरियस है अपने लोगों के डाटा को लेकर और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन वो समय अनुसार काम किसी वजह से डिले रहा। दूसरा पक्ष है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसमें लोगों के हित में लाने वाली बहुत सारी चीजें, कानून, नियम भारत सरकार लाना चाहती थी, और उसको किसी तरीके से उसमें व्यवधान डाला जाए, इसी के चलते इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का काम किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट के चलते, चाहे कोविड की सिचुएशन थी चाहे अन्य विषय थे, जिसपे लगातार एक भयंकर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, जहां पर राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेवारी और मुंह मोड़ने वाली हरकतें सब जनता के सामने ना आए और उन विषयों पे बहस ना हो पाए, इस कारण से भी एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। लगातार भारत के लोकतंत्र के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और भारत को इंस्टीट्यूशनली कमजोर करने का प्रयास है। येलो पेजेस या जिसमें घर की लोकेशन पता चले, उस तरीके की सर्विसेज का एक डाटा लीक कर दिया जाए और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहाँ का न्याय है। जैसे मिथिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन गढ़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के
फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। आपको ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC/ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित जिनको भारत के समाज में न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप मैम, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, मतलब आप लोग जो ये कह रही हैं कि काल्पनिक लिस्ट है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के अपने बयान से पीछे हटने से की वजह से, या फिर आप लोगों के पास कुछ एविडेंस भी है इसको? हमारे देखिए, एविडेंस हमारे पास कैसे होगा? आप एक लिस्ट बना के ले आइए तो एविडेंस आपने देना है, मैंने नहीं देना। ओनर्स उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने ये लिस्ट बनाई। तो जो फॉरबिडन स्टोरी है, ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनर्स है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करें, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। तो झूठ मूठ की लिस्ट जिन लोगों ने बनाई है उसके आधार पर जब आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो एमनेस्टी का बयान है, आपका आधार फॉरबिडन स्टोरी है, वही अपनी लिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये फैब्रिकेशन और ये कॉन्कॉक्शन के लिए आप जिम्मेवार है। फोर्जरी का केस तो आप पे बनता है, और पेगासस की जो बनाने वाली कंपनी है वो NSO आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकती है। मैम, सीधा सीधी बात ये, जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ रिलेटेड है और जैसा कि आपने कहा कि उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है, तो भारत सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इसमें छवि धूमिल हो रही है, भारत सरकार की छवि खराब किया जा रहा है, तो क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से कुछ जांच हो जाए या कोई FIR दर्ज हो, कुछ एक्शन हो जाए? मुझे देखिए, इस तरीके की चीजों में एनर्जी वेस्ट, मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। भारत सरकार को भारत के लोगों के पक्ष में जो कानून लाना है और भारत के लोगों के पक्ष में जो जो काम करना है वो भारत की सरकार करेगी। एक झूठे नैरेटिव के ऊपर मैं अपनी सारी ताकत व्यस्त करूं और जो काम करने वाले हैं वो काम ना करूं, तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। बाकी जैसी जरूरत होगी समय अनुसार किया जाएगा। मैडम, मेरा सवाल है कि बार बार विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि वो सॉफ्टवेयर ली है या नहीं ली है, उसके पास है या नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे जब टेररिस्ट और लेफ्टिस्ट से डील करना है, माओइस्ट से डील करना है, मैं कौन सी सॉफ्टवेयर पे क्या काम कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। मैं आतंकवादियों का साथ दूंगी। आप आतंकवादी के साथ है, ISI के साथ है, किसके साथ है, ये पहले कांग्रेस क्लियर करे। मैंने कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की है या मैं क्या चीजें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं पब्लिक में बताऊंगी। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट क्या पब्लिक में स्टिकर लगा के लगाया जाएगा ताकि उससे बचने का रास्ता ढूंढा जाए? आप अपना बताइए। ये लिस्ट गलत है, ये सब कुछ गलत है, ये सब झूठ है, और इस झूठ की बिना पर आप कुछ चला रहे। पहले तो आप लिस्ट प्रूव कीजिए। ये मेरा केस नहीं है, ये आपका केस है। फॉरबिडन एमनेस्टी ने कहा कि ये लिस्ट गलत है,
NSS ने बोला कि ये हमारे कस्टमर से इसका लेना देना नहीं है, तो आप मनगढ़ंत येलो पेजेस से कोई भी लिस्ट उठा के चलाएं और आप उसका ओनस मेरे पे डालेंगे, कौन सा न्याय है जी? और मैं टेररिस्ट को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, जब आप सरकार में थे आपको पता होगा आपने क्या क्या खरीदा। यतीन्द्र शर्मा। मेरा इससे अलग हटकर सवाल है कि जंतर मंतर पर किसानों को बुलाते मैडम न्यूज़ 18 के कैमरामैन पे आज हमला हुआ है की गई है किसानों के द्वारा। मेरा ये सवाल है कि देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। और किसी भी न्यूज एजेंसी या मीडिया को रोकने का प्रयास करना तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र के खिलाफ है। और यही लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, चाहे वो इस तरीके के चीजें हो। फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो कमेटी रहेगी। एक चेयरमैन को मैं चेयर करती थी, अब मैं नहीं हूं तो कोई और उसको चेयर करेगा और एडॉप्शन के लिए उसको सर्कुलेट करेगा। तो ये कहीं मुझे लगता है कि उससे लिंक्ड है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर कोविड सिचुएशन को लेकर एक भयंकर नैरेटिव बनाया गया और जैसे कि सांच को आंच किया। जब हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लगातार दिन रात प्रधानमंत्री जी के निर्देश में काम किया, तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा, क्योंकि कल का विषय इसलिए मैं आज दोबारा दोहरा रही हूँ, ऑक्सीजन को क्राइसिस को लेकर। MOS हेल्थ ने एक बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वालों की संख्या राज्य सरकारों ने नहीं दी है, तो हमारे पास डाटा नहीं है। अब इस बात को कैसे घुमाया जाता है कि ऑक्सीजन से मरने वाले लोग ही नहीं है, आप संसद के सदन में झूठ बोल रहे हैं। अब इसको आप सुनिए कि दो गलत काम इन लोगों ने किए, जिसको डबल जेपरडी कहा जाए या डबल डिफॉल्टर्स कहा जाए। पहला ये कि जब ऑक्सीजन की कमी देश में थी, 900 मेट्रिक टन देश में ऑक्सीजन बनती थी पूरे देश में। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो केवल 900 मेट्रिक टन थी। दिल्ली, जिसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें 900 मेट्रिक टन आप दे दीजिए। 970 मेट्रिक टन दिल्ली अकेले मांग रही थी। केंद्र सरकार ने कहा जी गलत है, ये आंकड़ा ही गलत है, 970 मेट्रिक टन आपका रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता, आपका जो सही रिक्वायरमेंट है आप बताइए। कोर्ट सब दिल्ली में, सभी लोग दिल्ली में रहते हैं। कोर्ट को भी गुमराह किया गया, एक हफड़ा तफड़ी मचा के माहौल खराब किया गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब करवा दो, कॉन्सेंट्रेटर बाजार में मत आने दो, लोग पहले से दुखी तकलीफ में हैं, माहौल, जनता का मन और माहौल को खराब किया गया। सरकार को ऑर्डर हुआ 770 मेट्रिक टन आप चोरी करके दो, उड़ा के दो, कुछ करो, आप दिल्ली को दोगे। सरकार प्रेशर में, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे राज्यों को देनी है, दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, पूरे देश को सप्लाई देनी है। उन्होंने 770 मेट्रिक टन का अरेंजमेंट और डाइवर्जन किया और साथ ही केस को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। दिल्ली के बॉर्डर्स पर टैंकर खड़े हैं, उनको नहीं पता कि हमको किधर जाना है। और 3 दिन लगातार, 4 दिन जब वो ऑक्सीजन 770 मेट्रिक टन आई, तो दूसरे दिन से इन्होंने वापस करनी शुरू कर दी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ऑक्सीजन ऑडिट करवाइए। जब पीक पे महाराष्ट्र में, यूपी में, सब बड़े राज्यों में तकलीफ थी, उनको भी 200-300 मेट्रिक टन चाहिए थी, दिल्ली को 770 क्यों दी जा रही है, उसका इम्पैक्ट बाकी राज्यों पे आ रहा है। तो इन्होंने ऑक्सीजन लेने से इनकार किया, कहा वापस ले जाओ। अब ऑक्सीजन की स्टोरेज आप गठरी बांध के सर पे तो रख नहीं सकते, बोरी में बंद नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए आपने क्या व्यवस्था की, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने क्या व्यवस्था की, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। काम आपने कुछ किया नहीं, पता है ये सब चीजें संसद में आएंगी। तो नैरेटिव घुमाओ,
कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। अरे भाई, मरने वालों की संख्या शमशान घाट से इकट्ठा करना आपका काम है, केंद्र सरकार का नहीं है। और इकट्ठा करके केंद्र सरकार ने आपने भेजना है। इरविन हॉस्पिटल में कितनी मौतें हुई वो डाटा एनसीटी दिल्ली के पास जाता है और एनसीटी दिल्ली बताएगी कौन हार्ट अटैक से मरा, कौन कोविड से मरा, कौन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरा। केस ऑक्सीजन रिलेटेड ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है। तो डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की, ऑक्सीजन सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, अस्पतालों तक पहुंचे, लॉजिस्टिक चेन सही हो, वो जिम्मेवारी आपकी, ऑक्सीजन स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी। और आप केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं जिसने पानी का जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, सड़कें, सब चीज का इस्तेमाल करके आपके पास ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाने का काम किया। तो ये सब बात जनता के सामने ना है। अस्पतालों की क्या हालत है वो पता ना चले, वेंटिलेटर आज तक खरीदे नहीं गए वो देश के सामने ना है, दवाई बनने के समय किस किस नेता ने क्या क्या झूठ बोला वो लोगों के सामने ना है। तो पूरा नैरेटिव को गलत रास्ते पर लेके जाना यही विपक्ष कर रहा है। और वही विपक्ष पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन भी लोगों को ना मिले उन एजेंसीज के साथ लगा हुआ है जहां पर हम सब लोग ऐसे फोन्स इस्तेमाल करते हैं जिसको पेगासस की जरूरत नहीं है हैक होने के लिए, बहुत आसान है। ये सब फ्रॉड बातें करने की जरूरत नहीं है। वो डाटा प्रोटेक्शन ना हो, वो एप्स जो हम डाउनलोड करते हैं वो एप्स आपकी बातें सुन रही हैं, उसके ऊपर कानून ना बने देश में। असलियत तो कुछ और है, निशाना कुछ और है, तीर कहीं और है। ये सारी कहानी वहां से। और ये वही लोग हैं जो आधा पौना डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके घूम रहे थे। लेकिन आपको डाटा प्रोटेक्शन कमिटी ने कितनी सबसे अधिक मीटिंग्स की हैं इस दौरान, सबसे अधिक घंटे बैठ के उस पर काम हुआ है। और बहुत सारे विपक्ष के लोग, मैं नाम नहीं ले सकती, सबने मिलकर ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस कमेटी के ऊपर काम किया है। और एक एक शब्द स्क्रीन पे लिखा गया और सबको कहा गया पढ़िए, क्या ये शब्द ठीक है, क्या ये एक्ट ठीक है, क्या ये लाइन ठीक है, कुछ भी बदलना है आप बदलिए और बहस कीजिए खुल के। इस तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है, उसको ही डिरेल करने का काम है जी। मैडम 26 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं। इसी मवाली है। सवाल यही है मैडम कि जिस तरीके से आज फिर दिल्ली में अलाउ किया गया और न्यूज़ 18 कैमरामैन पर जिस तरह से हमला किया, आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से ठीक है, इसका संज्ञान लेना चाहिए? इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट से, ये आपराधिक गतिविधियां हैं। और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। आपकी जो ऑक्सीजन वाला आपने कमेंट किया था उसका ये है, अब उसको छोड़ दीजिए, देखिए वो आज का विषय नहीं है, आज के विषय से संबंधित बात कीजिए। मैम क्या पेगासस पहले वाले गवर्नमेंट ने खरीदा था? मुझे नहीं मालूम जी, जब सरकार में होते हैं, सरकार की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं और क्लासिफाइड चीजों को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम, जो मेरी पे स्केल से ऊपर की चीजें मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकती। जेपीसी बनी हुई है पहले से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, आपने, मैं संध्या बोल रही हूँ दैनिक भास्कर से, तो जेपीसी बनी हुई है और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के काम भी हो गया, रिपोर्ट तैयार है। बीच में ये पेगासस का कांड हो जाता है पूरा। इसमें सारी चीजें ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना पक्ष भी रख दिया है, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं, 10 रिपोर्टर ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनको स्पाई किया गया है, फॉरेंसिक जांच हुई है इनकी। एक मिनट, तो ये लोग अपने, इनका तो राइट है कि ये पूछेंगे अगर हमें स्पाई किया गया है तो कैसे स्पाई किया गया है, किस आधार पर स्पाई किया गया है। किससे पूछेंगे? सरकार से पूछेंगे। कैसे सरकार से पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? अपना फोन आप कौन सी सरकारी एजेंसी को देंगे? आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया में आपके डाटा के साथ क्या कुछ खेल कौन कौन लोग कर रहे हैं। ये पेगासस वगैरह ये सब मैं कहूँगी बचकानी हरकतें हैं। आप जो फोन खरीदते हैं, आप जो उसके अंदर माइक्रोचिप डाला होता है,
वही सब चीजों से भी स्पाइंग होती है, और कौन लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे, और वही ना बात हो इसके लिए ये सब कांड हो रहा है। ठीक है मैम, इसका ऑनर सरकार ने सरकार के ऊपर मैम कोई ऑनर्स नहीं है। आप जिन लोगों ने लिस्ट को आधार बना के काम किया है, ऑनर्स उनके ऊपर है। मैं आपका नाम नहीं जानती, लेकिन मैं आपका नाम लिस्ट में डाल दूंगी तो आप भी स्पाइंग की शिकार है। ठीक है, ये एक सवाल नहीं, और सवाल है। Thank you. And that is the fake news which is floating around. The opposition, especially the members of TMC and Congress, will stoop so low as to, while being political opponents, they will do things to damage the reputation of the country. And today in the House, one of the members snatched the papers from the minister who was making a statement. This sort of behavior is something which democracy has never seen, and we have seen earlier how they conducted themselves when Prime Minister was addressing and introducing the new ministers in the parliament. While this new law has been brought into politics, is something we all must understand. And the fact is that this story which is floating around about Pegasus is a fake story. The fact is also that Amnesty has denied that list which is circulating is not an actual list, and it's only indicative of something. So basically, there are two services which are available in public domain, that is HLR services and VLR services. That is means home location registry or visitors location registry. Now pick up a yellow page. You will all remember that there used to be a directory system. BSNL used to have its own directory. There are so many other directories, yellow pages also. And from yellow pages to yellow journalism is what we have seen in this entire story. Some list is crafted, created, circulated, and the story goes around a fake list. 10 countries have been named, that 10 countries this spyware is used. Now I do not know which spyware is used, but if those spyware is used by 10 countries, have the other countries' opposition behaved and reacted the way our opposition has? This is not a story, this is a non-starter across the globe, because based on concocted, fabricated, evidence-less story, nobody does story, because that story itself calls for forgery and defamation. Leaked data is an offense, and that leads to further complications for people who base their stories on leaked data. It only happens in India. I am really shocked and surprised the way mythical characters like Darth Vader or Voldemort are created in Harry Potter. Similar conduct is being indulged in by the opposition in the parliament. Whenever something right and good is supposed to happen to the country through welfare schemes, new laws, this kind of conduct is indulged in. And yes, you must understand the chronology. The chronology is, there is something like Data Protection Act, a joint parliamentary committee, which I was chairing and was assigned, a task assigned to me by the Honorable Speaker. All the members of opposition worked on it in a most transparent manner. The report was ready, but the whole country was moving from one crisis to the other, especially in view of Corona, then elections, then parliamentary session, then reshuffle. All those things led to that report is not brought before the parliament for adoption. But that report is submitted to the speaker. And data protection is going to become the law of the land. And this is directly connected with that. This is to undermine the Indian institutions, that these kind of stories are floated. This is to
desensitize public on the credibility of the structures when rights of Indians and democratic structure is involved, and to malign the image of country that these acts are depended upon by the opposition. And that's why I say that these people are people who will do anything to fake the story, fake the narrative. NSO, the company which builds the spyware, has denied that this is not a list of their customers and has no corroborative evidence of any connection between the list which is in circulation or their customers. Amnesty International has denied about this list, and yet opposition has continued to disrupt the House on a fake list. And if you recall, on WhatsApp also, they had brought this story earlier about a spyware. The matter went to Supreme Court and matter was decided against that fake narrative. Repeatedly, these kinds of narratives are built only to damage the reputation of India, so that the new ecosystem which government is trying to create to secure the data of Indians, to secure and build an ecosystem which is protective of Indian data and Indian the rights of Indian people. To damage all that, these kind of things are created, in addition to the fact that Parliament is in session, several new laws are likely to be brought in. Any decent debate on corona crisis management will show the previous governments in very poor light and existing opposition state governments in very poor light. To avert all the arguments in favor of the government, this particular story, the fake story, is being depended upon. We also know that this was leaked by Forbidden Stories. I don't have a problem with Forbidden Stories, but I do have a problem when Forbidden Stories does not mention the word fictional stories. The fiction is apparent by the 3 acts which they have engaged in, and there are all kinds of things which happen when it comes to spying and data protection. So far as India is concerned, we are dealing with Maoists, we are dealing with terrorists, we are dealing with people who are financial offenders, we are dealing with all kinds of criminals. And there is an established mechanism in which these acts or these protocols will be engaged in. There is Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, and there is Section 69 of the IT Act 2000. When there are issues concerning national security, public safety and public order, this protocol is followed, and this protocol is based on checks and balances. And based on these checks and balances, certain authorizations are granted for any kind of tapping or monitoring. So interception, monitoring and decryption is based on Information Technology Act and its rules. It's based on the earlier format of Telegraph Act. 3 things. One is the published story is based on a list of the numbers which are available in any directory. It's a home location register. The second part is the amnesty has denied this list. Third aspect is the company whose product of Pegasus is supposed to be used by some people has alleged that these claims are uncorroborated and do not tally with their customer base. And the time-tested processes in our country are absolutely stable and clear as to whenever this act of encryption, interception or decryption or monitoring is conducted, it is conducted under the rules and regulations of the land. So opposition can go on creating mythical conduct and go on working like a mythical figure themselves, and I have
to say except may God bless them with some wisdom. मित्रों, आज हम पेगासस से रिलेटेड जो कहानी येलो पेजेस के माध्यम से देखी जा रही है वो आप सबके सामने है। जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहां से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर है हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ दिया। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, NSO जो कंपनी है इजरायली, जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहाँ होती हैं, उसके बिल्कुल ऑथराइज प्रोटोकॉल है। उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये